He needed a hero, and that's what he became. Yeah, for himself and for other people too. My fam सुन रहे हैं आप आरजे मीनाक्षी के साथ, and this lovely Sunday evening, this is एक मुलाकात, और आज की मुलाकात is very special because I've got a model with me. Yeah, that's what I said. No, he needed to be a hero, and that's what he became. No, of course, he looks like a model. लगता है ये model की तरह है, लेकिन he is a doctor, and that too a बड्डे वाला doctor. I have with me Dr. Shivpreet Singh Samra, MD, Gratian Hospital, also a cardiac surgeon for long, in the business for 34 years. बड्डे वाला welcome. हैगा जी, हैगा जी, हैगा जी. Thank you so much, Meenakshi, and that was really over the top. Thank you so much. मैंने वही बोला जो आप हो. हाँ, लेकिन आप सोचते कहाँ से जोड़ रही है मीनाक्षी, है ना? वो तो मेरी आदत है. खैर, लेकिन हम आपकी बात करें एंड ग्रेशियन हॉस्पिटल की बात करें. बहुत सारी बातें आज हम इस शो पे करने वाले हैं, एक मुलाकात में करने वाले हैं. तो आप लगते तो मॉडल जैसे हैं, तो कभी पापा मम्मी ने कहा नहीं बेटे तुम मॉडल बन जाओ, या पापा मम्मी खुद भी डॉक्टर थे? कैसे हुआ ये? नहीं, मम्मी पापा डॉक्टर नहीं थे. माय फादर वाज अ पुलिस ऑफिसर, अ वेरी फेमस पर्सन. माय मदर वाज टॉपर ऑफ पॉलिटिकल साइंस फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी. बट ये 60-70s की सोच थी, तो बेटे को या तो डॉक्टर बनाएंगे या इंजीनियर बनाएंगे. एंड माय मदर डिसाइडेड दैट मेडिसिन अच्छी चीज़ है, सो शी सेड बेटा डॉक्टर बन जाओ. एंड आई वाज अ गुड स्टूडेंट, सो आई सेड ओके, सो मैं डॉक्टर बन गया. As a good student. क्या बात है, अमेजिंग. आज 34 years into this profession, वन थॉट क्या आता है? कभी आप अपना लाइफ को ये फ्लैशबैक देखते हैं तो क्या आता है? वन थॉट क्या? गुड जॉब? हाउ डू यू से टू योरसेल्फ? कुछ थॉट मन में आता है? क्या आता है? There is no field as good as medicine. वाह. If I had to do it again, I would do it all over again exactly like this but better than this. And I believe that my life changed in 1984 when I joined MBBS. Lovely. Oh my God. Wow, that's fantastic. आज यहाँ तक आप पहुँचे हैं. So we always talk about हम किसी ना किसी चीज़ से या किसी शख्स से इंस्पायर्ड होते हैं. अगर मैं बात करूँ डॉक्टर सामरा की इंस्पिरेशन कौन रहा है लाइफ में? मुझे इंस्पिरेशन में कभी प्रॉब्लम नहीं आई. आई हैड माई फादर. Okay. My father, 1962 IPS batch, A.S. Samra, the man who cracked the Bombay bomb blast case, Police Commissioner of Bombay, eventually DG of the state, twice President's Police Medal, Delhi School of Economics, all-rounder, having knowledge of economics, sports. So when you have a father like that, you don't have to look outside My the house. God, you had a superhero in a father. Actually, your father was a superhero. He was known as a super cop. I think so. Yeah, he's a superhero too. Yes, he was known as a super cop, and once actually a feature was done on him in Bombay along with KPS Gill, who we were related to. These are the two super cops. जी. So that's very true. My God, that's amazing. Again, a father who was a super cop and a superhero. लेकिन इसके अलावा डॉक्टर सामरा कोई ऐसा शख्स जो आपकी इतनी सारी लंबी बड्डे वाली लाइफ में आपको इन्फ्लुएंस किया हो, इंस्पायर किया हो? I have worked with some of the best doctors in the city of Bombay. Okay. And this has been my good luck. And I believe that people who have good luck in their life and good abilities for whatever reason need to give a lot back to society. This is my personal belief, and that is why I am what I am, and that is why I do what I do. I have had such experiences. I mean, I don't know where to start. When I was a medical student, I used to be complimented by a gentleman called Dr. Farooq Udwadia. Oh, okay. He is the medical director of Breach Candy, the man who saved Amitabh Bachchan, and he used to encourage me. When I decided to be a surgeon, I went to his brother, that's Tempton Udwadia, who did the first laparoscopic gallbladder surgery in the country. So I got inspired by him. After I did cardiac surgery, I worked with Dr. Bhattacharya, who possibly is the best cardiac surgeon in the whole country. Wow. So I have had a lot of many influences. Yes, I have had so much good luck to meet and interact with these people, and all these were positive influences on me. Wow. So you were born and brought up in Mumbai. I was born in Chandigarh. You were born in Chandigarh. Sector 16 hospital. अच्छा. मैं भी वहीं थी. लेकिन हाँ, मतलब हमारा टाइमिंग का अलग होगा. अच्छा, लेकिन आप मुंबई में फिर कितने साल रहे? I have been on and off in Bombay. I mean, because my father was in the police service, I have been in Bombay since 1975 on and off. He used to also get posted into Maharashtra. But it's a fact that I have been educated in Bombay, and my first job as a cardiac surgeon was at Hinduja Hospital in Bombay. Okay. So before I had the good fortune of coming to Chandigarh, the other place which I love so much. ग्रेशियन हॉस्पिटल की बात करें, डॉक्टर कितने टाइम हो गया ग्रेशियन हॉस्पिटल को चंडीगढ़ में, मोहाली में आए हुए? ग्रेशियन हॉस्पिटल की इनॉग्रेशन
बैसाखी डे 2006 में महाराज अमरिंदर सिंह ने की थी। वाओ। सो इसको 12 साल हो चुके हैं और ये इस ट्राई सिटी और इस रीजन का पहला प्राइवेट कैंसर हॉस्पिटल है। We put up a heart and cancer hospital. Heart क्योंकि I'm a heart surgeon, and cancer because unfortunately I had lost my mother and my mother-in-law both to cancer. And we had promised that we will deliver a really good quality cancer hospital and a good quality heart hospital, which we have done. डॉक्टर साहब, कैंसर की मैं जहाँ देखो, मतलब इट्स सैड, लेकिन अब जहाँ देखो ऐसा लगता है कि कैंसर, मुझे नहीं पता, स्टेटिस्टिक्स मुझे नहीं पता, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन जो हमें सुनने में आता है, जिसको देखो कैंसर हो रहा है, सोनाली बेंद्रे की बात करें, इरफान खान की बात करेंगे तो एक्टर्स हैं, लेकिन आप वैसे भी कोई भी आपका जान पहचान वाला हो, क्या कैंसर बहुत तेजी से बढ़ रहा है इंडिया में? कैंसर के बारे में जो लोगों की धारणा है कि वो बढ़ रहा है, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि दूसरी डिजीजेस अब काफ़ी काबू में आ चुकी हैं। और कैंसर एक डीजेनरेटिव डिजीज है। जैसे आदमी की उम्र बढ़ेगी तो आवर सेल्स आर प्रोन टू गेट कैंसर। अनफॉर्चुनेटली कुछ यंग एज के अंदर भी जो आपने नाम मेंशन किए, वो भी कैंसर से डिटेक्ट हो रहे हैं। बट इट इज़ अ फैक्ट दैट एज वी कंट्रोल अदर डिजीजेज, इन्फेक्शियस डिजीज हमने कंट्रोल कर लिया, हंगर को कंट्रोल कर लिया, बहुत सारी और चीज़ों को कंट्रोल कर लिया। सो हार्ट डिजीज एंड कैंसर, ये दो चीज़ें हैं जो कि एज रिलेटेड डीजेनरेटिव डिजीजेज हैं, इनका पिकअप बहुत बढ़ चुका है। अब मुझे याद है जब मैं आया था 2002 में यहाँ, तो सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड उतने इंस्टीट्यूट्स में होता नहीं था। अब डायग्नोस्टिक्स बहुत बढ़ गए हैं, लोग भी हेल्थ की तरफ कॉन्शियस हो गए हैं, तो जैसे कॉन्शियसनेस बढ़ेगी वी आर एबल टू डिटेक्ट डिजीजेस अर्ली। पहले सुनने में आता था कि किसी को कोई प्रॉब्लम हो गई, डेथ हो गया, पता ही नहीं चलता था, और पता ही नहीं चलता था कि, सो आई थिंक दैट इज वन ऑफ द रीजंस, एंड इसलिए पिकअप इम्प्रूव हो गया है और लोग अब उसके साथ ज़्यादा जी भी रहे हैं। We are able to live with cancer. We are able to live with heart disease. This is a fact. But that's scary. But one thing is कि क्या कोई तरीका है, ये मुझसे भी बड़े लोग पूछते हैं, बिकॉज मैं भी इतने सारे डॉक्टर्स को इंटरव्यू करती हूँ. ऑफ कोर्स टुडे वी हैव द एमडी ग्रेशन हॉस्पिटल हिमसेल्फ. लेकिन क्या कोई तरीका है डॉक्टर सामरा जिससे एटलीस्ट हम थोड़ा सा श्योर हो जाएंगे शायद हम कैंसर को कंट्रोल करने हैं अगर हम ये 4 चीजें करते हैं? तो ऐसा कुछ है? नंबर 1, स्टॉप स्मोकिंग. अगर टोबैको कंजम्पशन को कंट्रोल किया जाए तो इससे बड़ा हम कोई योगदान नहीं दे सकते हैं पर्सनल लाइफ में, दूसरों के लाइफ में. सो नंबर 1 प्रॉब्लम इज टोबैको. सेकेंड थिंग इज हैविंग अर्ली कंसल्टेशन विद डॉक्टर एंड स्क्रीनिंग. अनफॉर्चुनेटली हमारी कंट्री में हम स्क्रीनिंग नहीं करते हैं. मैं आपको यूनाइटेड स्टेट्स की बात बता देता हूं जहां इंश्योरेंस हैज पेनिट्रेटेड मोर देन 90% ऑफ द मार्केट. और इंश्योरेंस आपका प्रीमियम तभी रिव्यू होता है अगर आप एनुअल हेल्थ चेकअप करें. और हमारे देश में भी ये आना है, लेकिन लोगों को जरा झिझक होती है, डॉक्टर के पास जाओ, चेकअप कराओ. कई बार तो सर ऐसे कहते हैं डॉक्टर की को लोग कहते हैं रहने दो, कुछ निकल ही जाएगा. लाइक आई मीन दैट्स द फनीएस्ट पार्ट. अगर निकल जाएगा तो उसका इलाज कराओगे, वो कहते हैं रहने दो, हमें कुछ निकल जाएगा, हमें कुछ टेस्ट करावांगे, कुछ निकल. ये बहुत एक नॉर्मल फिनोमिनन. दैट इज करेक्ट. और ये एक नॉर्मल फिनोमिनन है, लेकिन ये गलत फिनोमिनन है, क्योंकि अगर जल्दी पता चलेगा तो उसका इलाज अच्छे से हो सकता है. वो ये तो थोड़ा उस तरह का हो गया ना कि कबूतर सोचता है कि बिल्ली है तो आंखें बंद कर लूं, लेकिन आंखें बंद करने से वो बिल्ली तो नहीं जाने वाली. चलिए, फन और मस्ती तो बहुत हो रही है आज के शो में, बट when you talk about wellness or illness, it's a serious business. And खास तौर पे इतना बड़ा हॉस्पिटल मैनेज करना. he is the MD of Gratian Hospital. Dr. Shivpreet, it's Tri-City's first private cancer hospital. बहुत सारे ऐसे केसेस, इवन इफ हम कैंसर की बात करें या बाकी और केसेस की बात करें, कई बार ऐसा मुश्किल भी होता होगा आपको देख के कि ये इस स्टेज पे आए हैं, और ऐसे बहुत मिक्स इमोशंस भी चलते होंगे, और आप इतने सालों से ये कर रहे हैं फॉर लास्ट 34 years. फॉर अ ले पर्सन दिस कुड बी ट्रू के एडवांस्ड कैंसर है, अर्ली कैंसर है. हमारे लिए तो अपना काम बन गया है ये, और हम इसको काफ़ी अनइमोशनली डील कर सकते हैं. लेकिन हमने अपनी फिलॉसफी बहुत क्लियर रखी है कि अर्ली स्टेज हो या लेट स्टेज हो, हमें अपना काम टू द बेस्ट ऑफ आवर कैपेबिलिटीज़ करना है. और कैंसर का पेशेंट किसी भी स्टेज में आए तो हमें अपनी पूरी मेहनत के साथ उसको मैक्सिमम बेनिफिट देना है. हम किसी पेशेंट को कभी टर्न अवे नहीं करते. अगर पेमेंट की इशू होगी तो भी हम उसकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करते हैं. एंड ये हम पिछले 12.5 सालों से कर रहे हैं. एंड बिकॉज ऑफ दिस वी आर आवरसेल्व्स वेरी हैप्पी, और हमें रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा मिला है फ्रॉम द पीपल हु कम एंड गेट ट्रीटेड इन आवर हॉस्पिटल. एंड वी हैव मैनेज टू ग्रो. ये हॉस्पिटल जब शुरू किया था तो केवल 75 बेड्स था, अब ये 340 बेड्स हो गया है.
और हमें दिख रहा है कि जिस तरह अभी एक नेशनल स्कीम आने वाली है फॉर हेल्थ ट्रीटमेंट, तो इसको अब हमारे को 525 बेड बनाना है। Awesome. और हम एक और हॉस्पिटल भी खोलेंगे इसके लिए। इस प्रोफेशन में आदमी को सबसे ज़्यादा जो चीज़ मिलती है वो है जॉब सेटिस्फैक्शन। Right, absolutely. और ये चीज़ मैं आपको ठोक के बोल सकता हूँ कि जो सर्जन है उसके जैसे जॉब सेटिस्फैक्शन और किसी की नहीं, क्योंकि वो आता है, वो ट्रीटमेंट करता है और शाम को बहुत खुशी के साथ घर जाकर अपना डिनर खा सकता है। क्या बात है, और बड़ी अच्छी नींद आती है। बहुत अच्छी नींद आती है। डॉक्टर सामरा, अगर हम बात करें ग्रेशन हॉस्पिटल की, तो क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो ऑफ कोर्स हर हॉस्पिटल में, हम ये नहीं कहते कि ये हॉस्पिटल उससे बेटर है, बट अगर मैं ग्रेशन की बात करूं तो क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर जो बिल्कुल यू आर ग्रोइंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स और बहुत आगे बढ़ रहा है, और क्या क्या चीज़ें, क्या स्पेशलाइजेशंस हैं ग्रेशन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की? सुपर स्पेशलाइजेशन सारी ही हैं। कैंसर की सारी सुपर स्पेशलाइजेशन है, हार्ट की हैं, मैं खुद कार्डियक सर्जन हूँ, न्यूरो साइंसेज है, यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, जीआई साइंसेज है। और हमने एक स्पेशल काम किया है कि हमारे डॉक्टर्स हमारे पास फुल टाइम है। इसका मतलब है कि वो केवल आपको हमारे हॉस्पिटल में ही मिलेंगे और सवेरे से शाम तक वो अवेलेबल हैं। इवन अगर रिक्वायरमेंट होगा तो संडे को दे विल कम एंड वर्क, क्योंकि ये डेडिकेटेड काम है। डीलिंग इन सुपर स्पेशलिटी सर्विसेज एंड ह्यूमन लाइफ, दोनों के लिए ही आदमी को डेडिकेटेड होना ज़रूरी है। और ये हमने स्टेप बाय स्टेप किया है पिछले 12 सालों में, और आगे भी जाते हुए अब हमारा ये कोशिश है कि हर डिपार्टमेंट के अंदर हम लोग फैसिलिटीज़ बढ़ाएं। सो जैसे हमारे पास में एक यूरोलॉजिस्ट था तो अब 2 होंगे, न्यूरो साइंसेज में एक है तो 2 होंगे। ये सब हम बढ़ा रहे हैं क्योंकि गोइंग फॉरवर्ड मुझे दिख रहा है कि ये हेल्थ केयर का बर्डन हम केवल सरकार पर नहीं डाल सकते। प्राइवेट सेक्टर हैज़ टू डू इट्स जॉब, प्राइवेट सेक्टर हैज़ टू डिलीवर क्वालिटी एंड वी हैव टू कीप द प्राइस इन माइंड। और इसमें बहुत पोटेंशियल है। अगले 10 सालों की मैं बात कर रहा हूँ, इस कंट्री के अंदर बहुत रिक्वायरमेंट है और अपने एरिया में तो खास रिक्वायरमेंट है। क्या बात। कितना टाइम, अगर मैं आपसे पूछूं डॉक्टर सामरा, एक दिन में कितने घंटे आपके जाते हैं ग्रेशन में? मतलब कितना घंटे यू गिव टू वर्क? व्हाट इज योर वर्क आवर? मैं सवेरे 5 बजे उठ जाता हूँ और शुरू कर लेता हूँ, और रात को तकरीबन 9:30-10 बजे सो जाता हूँ। बीच में 1-आध घंटा रेस्ट हो जाता है। पूरा दिन यही काम करते हैं। पूरा दिन यही लगता है? हाँ, तो यही करना है। और अनवाइंड रिलैक्स कब करते हैं, कैसे करते हैं? हम लोगों के पास घर पे टेलीविज़न है, तो माय वाइफ एंड आई वी मेक इट अ पॉइंट कि 1 से 1.5 घंटा हम साथ में बैठकर टेलीविज़न पे शोज़ देखते हैं। कभी हम केबल पे देखते हैं, कभी नेटफ्लिक्स भी यूज़ कर लेते हैं। और इसके अलावा आजकल फेवरेट शो? बीच में सेक्रेड गेम्स देखा था, दैट वाज वेरी गुड। तभी बैन हो गया। ओके। और उसके अलावा यूट्यूब पे गाने सुन लेते हैं। अच्छा, दैट इज अ गुड वे टू रिलैक्स। रेडियो में मीनाक्षी को सुनते हो कि नहीं? अब वो रोज सवेरे सुनते हैं। आपका शो 7 o'clock आता है, और जैसे ही 7 o'clock होगा वो हम ऑन करते हैं। उस समय यूजुअली हम लोग लेक से वापस आ रहे होते हैं। Lovely. Wow, fantastic. That is why he's so energetic and wonderful. You are an amazing guy, let me tell you, in front of the entire people who are listening. You're awesome, honestly. और रैपिडली ये कैसे इंटरव्यू खत्म होने को आ रहा है, पता नहीं चल रहा। मुझे तो टाइम का पता नहीं चला। डॉक्टर सामरा, आपको पता चला? हम कितनी देर से बैठे हैं? मुझे पता ही नहीं टाइम कितना फास्ट जा रहा है ना। एंड आई एम ऑल्सो थॉरली एंटरटेन, नॉट जस्ट ऑन द रेडियो बट इवन नाउ लाइव एंटरटेनमेंट। क्या बात है। चलो जी, एंटरटेनमेंट मुझे भी मिल रही है बहुत ज़्यादा, बिकॉज मेरे साथ डॉक्टर शिवप्रीत सिंह सामरा है, MD ग्रेशन हॉस्पिटल। एंड दिस गाय, नॉट ओनली ही इज द गाय दैट ही इज इन टर्म्स ऑफ हिज प्रोफेशन, लेकिन लेट मी टेल यू, और आपने सुना भी होगा कि इज वेरी विटी, वेरी फन एंड वेरी एंटरटेनिंग, जो मेरे बारे में कह रहे थे। देखो, हमारे को तो जॉब के कारण ऐसा होना पड़ता है, बट इनकी जॉब में ऐसे लोग कम मिलते हैं। सो इट्स ऑनेस्टली अ प्लेजर हैविंग डॉक्टर सामरा। डॉक्टर सामरा, प्रेशर में आते हैं आप कभी लाइफ में, या प्रेशर में आते हैं तो करते क्या फिर? कुछ प्रेशर के साथ डील करना कार्डियक सर्जन सीख ही लेता है। अच्छा। क्योंकि आप अगर कार्डियक सर्जरी कर रहे हैं तो उसके अंदर स्ट्रेसफुल सिचुएशंस आएंगी। एंड मैं कार्डियक सर्जरी बड़े सालों से कर रहा हूँ, 25 साल से मैं कार्डियक सर्जरी में हूँ। बट येस, देयर आर स्ट्रेसेस, वी हैव टू लर्न हाउ टू डील विद देम। और स्ट्रेस को पॉजिटिवली लिया जाए तो उसके बेनिफिट्स भी हैं। बिकॉज आपने अगर ज़िंदगी में कुछ अचीव करना है तो आपको अपने लिए टारगेट सेट करने होंगे, प्रेशर लेना होगा और फिर आपको डिलीवर भी करना होगा। सो दिस इज़ व्हाट आई कॉल पॉजिटिव स्ट्रेस। नेगेटिव स्ट्रेस को मिनिमाइज करने की कोशिश करते रहता हूँ। परफेक्ट, ग्रेट। एंड आपने अभी बताया कार्डियक सर्जन है, इतने टाइम से आप कर रहे हैं। हार्ट को लेके भी अगर आप 2-3 टिप्स लोगों को देना चाहें कि लाइक व्हाट कैन वी डू। एक तो आपने स्मोकिंग, आई थिंक स्मोकिंग हार्ट में भी बिल्कुल, और क्या क्या चीज़ें हैं टू टेक केयर हैविंग अ हेल्दी हार्ट?
स्मोकिंग के अलावा 3 चीज़ें हैं और ये लोगों को पता है लेकिन फिर भी कहना इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ी बात है हाई ब्लड प्रेशर। लोगों को इसके बारे में ना ठीक तरह से पता है, ना इसका ठीक से वो ध्यान रखते हैं। अगर ब्लड प्रेशर हाई है तो डॉक्टर को दिखाइए और प्लीज़ डॉक्टर की प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन रेगुलरली ले लीजिए। डायबिटीज़ को कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑलमोस्ट एक एपिडेमिक है डायबिटीज़ का। एंड द थर्ड वन इज़ अबाउट कोलेस्ट्रॉल, जिसके बारे में काफ़ी नॉलेज है, लेकिन अगर कोलेस्ट्रॉल हाई है और डाइट और एक्सरसाइज से कंट्रोल नहीं कर रहे तो प्लीज़ उसके लिए दवाई ले लो और उसको कंट्रोल कर लो। ये 4 फैक्टर्स को अगर आप कंट्रोल करोगे तो आप भी, आपका हार्ट भी खुश रहेगा, आप भी खुश रहोगे और बिलीव मी डॉक्टर्स भी खुश रहेंगे, क्योंकि देन वी आर एबल टू ट्रीट डिजीज़ इन एन अप्रोप्रिएट मैनर। लेकिन जो अपना लाइफस्टाइल कंट्रोल नहीं करते उनकी डिजीज बहुत एडवांस हो जाती है और हमारे को भी उसमें बहुत कठिनाई आती है, हम आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे पाते। ऑलराइट, आपका मैसेज लोगों के लिए कि ग्रेशन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की बात करें या जनरल अगर आप कोई मैसेज देना चाहें। हॉस्पिटल्स की तरफ पॉजिटिवली देखें, अपने आप को रेगुलरली चेक करें और अगर आपको कोई दिक्कत होगी प्लीज़ ट्रीट द हॉस्पिटल एंड डॉक्टर्स एज योर फ्रेंड्स। We are also human beings, trained human beings like you. We are not gods. We try our best to help you and we will continue to do so. Please reciprocate with the same sentiment. Wow, fantastic. Thank you very much. I will always reciprocate to you with the same sentiment as you met me. It was an absolute pleasure having you. Thank you so much, Meenakshi.